Hello young physics learner, welcome back to my class. This is Bhavna physics class and today I am going to explain you the Einstein explanation of photoelectric effect laws. So as I described earlier that there are 5 photoelectric effect laws that were the implications given by Lenard and Helmholtz experiment. So do you remember that laws, that implications? First one, because it is linked with that, so you must know first of all what were the implications related to the experiment done by Lenard and Helmholtz. So what was the first law? That photocurrent, photoelectric current full name है इसका, photocurrent I is directly proportional to intensity. Second, that kinetic energy does not depend on intensity. Third one, kinetic energy depends on frequency of incident radiation. Fourth one is work function and corresponding threshold frequency. And fifth one is time lag. I have written all these laws in a very short form, in a very short way. Okay, in my previous video I explained that laws of photoelectric effect, and afterward effect and emission. Emission is the phenomena and effect is the effect of that phenomena. So here these are the 5 implications. You can say it as the laws of photoelectric effect given by Lenard and Helmholtz experiment. Okay, so first one, that photoelectric current is directly proportional to intensity of what? Intensity of incident radiation. एक मेटल शीट पे जो रेडिएशन फॉल डाउन कर रहे हैं, the intensity is linked with the intensity of that radiation which is falling over that metal sheet. Again, I'm saying one thing, that this phenomena is the base of solar panel. और solar panel मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि what is solar panel. तो सोलर सेल, सोलर पैनल, तो ये आजकल की मॉडर्न सिनेरियो, मॉडर्न फिजिक्स का एक बेस हो चुका है. तो उसका बेस क्या है? दैट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉज. तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए. और आज मैं इस लॉज, ये आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन के बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, एंड दैट न्यूमेरिकल्स आर ऑब्वियसली बेस्ड ऑन दीज लॉज एंड द फार्मूला, दैट all the formula which you have learned in my all previous video. That this is lecture number 5. So in my 4 lectures I have given some formulas, and in this lecture also you will gain one formula. So that numericals are based on that formula, as well as I will tell you the trick to solve the numericals based on energy and wavelength. Okay, here photocurrent, that means the current due to photoelectrons is directly proportional to intensity of incident radiation. This is the first law. Second, kinetic energy does not depend on the intensity of incident radiation. Third one, kinetic energy depends on frequency of incident radiation. Okay. Fourth one, that work function introduction. Work function is the characteristic property of the material, that means the metal which is taken as a cathode in that experiment. So work function, which is represented by phi, and a corresponding threshold frequency. That means the law was, the fourth statement was that there is a minimum frequency below which no photoelectric effect phenomena occurs, and that minimum frequency is called threshold frequency. And corresponding to threshold frequency we can gain the formula for work function, and that work function formula is phi is equal to h nu naught, where nu naught is the threshold frequency. Okay, this formula is for threshold frequency nu naught, relation between threshold frequency and work function phi. Afterward, time lag. There is no time lag between, you can write here as no time lag. There is no time lag
between the incidence of radiation and ejection of electron from the metal sheet. तो जैसे ही metal sheet पे radiation, कोई भी UV radiation या visible radiation fall down करता है, at the same instant that electron, photoelectron eject from the metal sheet. So that is the fifth one. That means there is no time lag. I told you the time spent in this phenomena is 10 to the power minus 9 second, which is the uncountable time, you can say it, because transition time is 10 to the power minus 8. What is the transition time? That means the time till which any electron stay at the excited state, that is called the transition time. तो 10 to the power minus 8 सेकेंड के लिए अपनी excited state में रहता है, फिर वो अपने ग्राउंड लेवल पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन एटम में. तो उस ट्रांजिशन टाइम से भी कम टाइम है ये 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड का. सो देर इज़ नो टाइम लैग, यानी दिस टाइम कैन नॉट बी काउंटेड. ओके, इट इज़ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम. सो दिस वन इज़ द फिफ्थ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये पूरी डिटेल में आपको मैंने अपने आई थिंक लेक्चर नंबर 3 में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. दिस वन इज़ लेक्चर नंबर 5. लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्लासिकल थ्योरी फेल क्यों हुई और आइंस्टाइन की फोटोन थ्योरी है क्या. तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉज. इसीलिए रिक्वायर्ड था कि आज मैं रिपीट करूं इन लॉज को. तो जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो एक बार को नोट डाउन कर लो, मैंने स्टेटमेंट बता दिए हैं फिर से, अदरवाइज मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो. तो ये लॉज हैं. नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर आइंस्टाइन की थ्योरी आपको समझनी है. PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड PEE. ठीक है, इसको समझते हैं. तो आइंस्टाइन का जो फोटोन थ्योरी थी, उस फोटोन थ्योरी के अकॉर्डिंग्स में जो इंटेंसिटी रेडिएशन के बारे में इन्होंने बताया था, दैट इंटेंसिटी जो होती है, दैट इंटेंसिटी I इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स. पहले तो उन्होंने फोटोन का कॉन्सेप्ट बताया था कि एक जो रे है वो नंबर ऑफ फोटोन से मिलकर के बनी है. कोई भी अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे किसी भी टाइप की आप लोगे तो वो फोटोन से मिलकर के बनी है. ठीक है, इसे कहते हैं फोटोन. दीज आर द एनर्जी पैकेट. व्हाट आर फोटॉन्स? दीज आर एनर्जी पैकेट्स. यानी अगर इनमें से एनर्जी निकाल दी जाए तो इनका कोई मास स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है, सो दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एनर्जी पैकेट. मीन्स इसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं. रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0. व्हाट इज द रेस्ट मास? इट इज़ 0. हम अगर रेस्ट में तो हमारा मास है, बट अगर फोटोन की बात करें तो फोटोन जब रेस्ट में होता है तो उसका कुछ भी मास नहीं होता, यानी रेस्ट में उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं. तो अगर फोटोन मूव कर रहा है, यानी ये रे मूव कर रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग फोटॉन्स भी इसके अंदर मूव कर रहे हैं. तो फोटॉन्स जब मूव कर रहे हैं देन देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ फोटॉन एंड इट कंटेन्स सम एनर्जी. बट इफ़ इट इज़ एट रेस्ट, यानी रे जो होती है या रेडिएशन, रे एंड रेडिएशन बोथ आर सेम थिंग. तो रेडिएशन स्टिल नहीं होते. रेडिएशन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. दैट यू नो, सन से जो रेज आ रही हैं वो रुकी हुई नहीं है. सन क्या है, उसमें से जो रेज निकल रही हैं दैट रीचेज थ्रू आउट द यूनिवर्स. In the similar manner, all the stars that create radiation and that emit radiation throughout the universe. So radiation cannot be stop at one place. Clear? So this one is corresponding to intensity. जैसा classical theory में कहा गया था कि intensity is corresponding to energy, because the formula is I is equal to Q by AT. Q here is energy, A is area, T is time. हेयर आई इज़ इंटेंसिटी. तो रेडिएशन को पहले इन्होंने डिस्क्राइब किया है. क्लासिकल थ्योरी कहती है दैट इंटेंसिटी एंड एनर्जी बोथ आर इंटरलिंक्ड, बट मॉडर्न थ्योरी, द आइंस्टाइन थ्योरी एक्सप्लेन्स द फिनोमेना दैट इंटेंसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स. यानी ग्रेटर द नंबर ऑफ फोटॉन्स, ग्रेटर द इंटेंसिटी. lesser the number of photons, lesser the intensity of radiation. Next one, the energy of radiation. ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन, फोटोन थ्योरी यहाँ पे यूज़ होनी इन लॉज को एक्सप्लेन करने में, इसलिए रिक्वायर्ड है. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है अपने कि फोटोन थ्योरी है क्या आइंस्टाइन की. ठीक है. सो एनर्जी ऑफ रेडिएशन दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी
और वो फ्रीक्वेंसी किस तरीके से देते हैं, एनर्जी E दैट इज इक्वल टू h न्यू, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट and the value of h, you should remember this value of h is 6.6 10 to the power minus 34 joules second along with its unit joules second. Okay, so this one is the Planck constant value. Nu is the frequency of radiation. So frequency of radiation depends on energy, means indirectly this one is the relation, energy depends on the frequency of radiation. Greater the frequency, अब frequency कैसे रेट increase करेगी, frequency increase करेगी in accordance with the incoming radiation characteristic. Like electromagnetic radiation starts from, in the increasing order of wavelength, it starts from gamma ray. Okay, गामा रे से स्टार्ट होकर के लॉन्ग रेडियो वेव तक जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, दैट मीन्स न्यू इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, एंड v हियर फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव v इज इक्वल टू c. c इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो स्पीड इज फिक्स. In vacuum of free space, the value of c is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड फिक्स है, मीन्स फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर corresponding to the smaller value of the wavelength. Clear? तो if the wavelength is small, then the frequency is higher. That means the highest frequency is for what? It is for gamma radiation. गामा रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हाई होती है. उसके बाद किसकी आएगी, एक्सरे की. ओके, देन यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम यहाँ जो स्पेक्ट्रम होते हैं, मीन्स जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना होगा, इस पर किस स्पेक्ट्रम के लिए होता है, मैंने आपको बताया ओनली फॉर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फर्स्ट वन, एंड सेकेंड इज विजिबल. तो अगर हम विजिबल और अल्ट्रावायलेट की बात करें इन दोनों में, तो अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कम होती है, दैट मीन्स अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है. इट हैज़ फ्रीक्वेंसी न्यू यूवी और इट हैज़ फ्रीक्वेंसी न्यू विजिबल. सो न्यू यूवी, new UV that is greater than the new visible. Is it clear? विजिबल स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ ग्रेटर है एज कंपेयर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. तो अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है. अगर किसी मेटल शीट पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल करेगा तो उस समय फ्रीक्वेंसी हाई होगी, इसीलिए कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी हाई होगी. अगर उसी मेटल शीट पे विजिबल स्पेक्ट्रम फॉल डाउन करेगा तो फ्रीक्वेंसी कंपेरेटिवली लेस होगी और एनर्जी भी कोरस्पॉन्डिंगली लेस हो जाएगी. सो एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन. क्लियर है यहाँ तक? तो ये बेस कॉन्सेप्ट वर्क करेगा अभी एक्सप्लेनेशन में, जब हम इन लॉस को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी. ठीक है. एनर्जी थर्ड वन इज़ द आइंस्टाइन इक्वेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये इक्वेशन आपकी इस न्यूमेरिकल में तो बहुत यूज़ होनी है. आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना, PEE. दैट इक्वेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ. अगर आपको ग्राफ याद है, मैंने 4 ग्राफ्स बनाए थे. उन 4 ग्राफ्स में जो 4th नंबर का ग्राफ था वो काइनेटिक एनर्जी E के मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में था. वो ग्राफ लीनियर ग्राफ इस तरीके से आया था और इसकी इक्वेशन क्या बनी थी, E के मैक्सिमम y इज इक्वल टू mx प्लस c. सो m हियर दैट इज h, x एक्सिस पे न्यू है, प्लस c क्योंकि इसका इंटरसेप्ट माइनस y एक्सिस पे जा रहा है इसलिए माइनस c आ जाएगा. माइनस c हियर दिस वन इज द इंटरसेप्ट वैल्यू विच इज इक्वल टू 5. ओके, तो ये जो इक्वेशन बनी है, द सेम इक्वेशन is on the basis of Einstein equation is on the basis of this graph, 4th number graph. तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो फिनोमेना हो रहा है इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मैंने काइनेटिक एनर्जी को KE से रिप्रेजेंट किया था. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट शुड बी इक्वल टू h न्यू माइनस ऑफ phi हो जाएगा, वेयर phi इज़ द वर्क फंक्शन. इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, इसलिए इसको ध्यान से सुनना. तो ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक्सप्लेनेशन के लिए अगर हमें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉस को एक्सप्लेन करना है. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट डिस्क्राइब द आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉज. ठीक है, ये क्वेश्चन
जनरली समझ लो कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर में से आता ही है, इस यूनिट में से आता है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये 3 जो बेस हैं, जिन रीजंस के बेसिस पर आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया इन लॉज को, उनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या है ये बेस। तो पहला बेस है इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और आइंस्टाइन की इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू एच न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन माइनस फाई की वैल्यू को आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन नेम दिया। दैट मीन्स बिकॉज फाई इज वर्क फंक्शन, so work function is equal to h nu naught, where nu naught is the threshold frequency, and threshold frequency is the characteristic property of the metal, that means cathode we are using in that experiment. तो ये equation बन करके आती है। That means in short we can write kinetic energy maximum is equal to h nu minus nu naught. Okay. So this one is the Einstein equation for photoelectric effect. ये 3 एक्सप्लेनेशन अब इन लॉज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ, मैंने इसी तरीके से आपको क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पर भी इन लॉज को एक्सप्लेन किया था, और उस एक्सप्लेनेशन में आपने देखा था कि 3 पॉइंट्स अनसेटिस्फाइड हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, जबकि 2 पॉइंट सेटिस्फाइड हो गए थे। तो क्योंकि मेजॉरिटी में पॉइंट्स अनसेटिस्फाइड हैं, इसलिए क्लासिकल थ्योरी फेल हुई थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है दैट आइंस्टाइन थ्योरी, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फोटो करेंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अब इसको देखते हैं किस तरीके से हो रहा होगा। इसको एक्सप्लेन करना आपको लिखना है प्रॉपर। जब बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे देखो intensity because it is directly proportional to number of photon. So greater the intensity means greater the photons, greater the number of photons. अब ये जो मेटल शीट है, जो कैथोड था, कैथोड पे ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर फॉल डाउन करेंगे तो क्या होगा, हर एक फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है। तो जितने ग्रेटर नंबर पे फोटोन फॉल डाउन करेंगे उतने ही ग्रेटर नंबर पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इमिशन होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। जितने ग्रेटर नंबर पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, बिकॉज करंट I इज इक्वल टू Q बाई T, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। सो चार्ज इज इक्वल टू N इंटू E। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है कि करंट कितनी है। तो करंट अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो इसका मीनिंग यही है कि करंट बढ़ रही है। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सेम रहेगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज करने पर करंट इंक्रीज कर जाएगी। सो आई एम जस्ट कंपाइलिंग ऑल द एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट पॉइंट। इंटेंसिटी, if it is increasing then corresponding number of photons increases. If the number of photons fall down over the cathode increases, corresponding ejected photoelectrons increases. If the photoelectrons increases then the corresponding current, photocurrent increases. So with increase in intensity of radiation there is an increase in photocurrent, and that is the first law. So it is satisfied by the explanation given by Einstein. Clear? Now come to the second point. Kinetic energy does not depend on intensity. So come to the point. Intensity, अब ये जो intensity का है इसी को हम फिर से चेक करते हैं। Intensity के इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, यानी यहाँ पर फोटोन की नंबरिंग इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक फोटोन के पास जितनी एनर्जी है, एक रेडिएशन में सारे फोटॉन्स के पास एक ही जैसी एनर्जी होती है। तो यहाँ पर अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स तो इंक्रीज हो जाएंगे, बट द एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू सिंगल फोटॉन दैट विल नॉट इंक्रीज। तो अगर फोटॉन पहले वाली एनर्जी का ही आ रहा है तो फिर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी भी एनर्जी पहले जैसी ही रहेगी, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, वो सेम रहेगी पहले जैसी। तो आप इंटेंसिटी को चाहे जितना इंक्रीज करा दो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज कर जाएंगे, बट एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन फोटो इलेक्ट्रॉन दैट विल रिमेन द सेम। तो इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट, दैट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। इज इट क्लियर?
तो दिस वन इज द एक्सप्लेनेशन फॉर सेकेंड पॉइंट. अगर कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप तुरंत के तुरंत कमेंट करके मुझसे पूछो, और आई विल एक्सप्लेन इट अगेन विद सम डिफरेंट एग्जाम्पल. बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस में कुछ वैरायटी होती है जिसमें कई बच्चों को समझ में आ जाता है, कई बच्चों को नहीं समझ में आता उसी सेम एक्सप्लेनेशन से. तो वो फिर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर दूंगी, एंड दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड regarding the topic. Okay, now come to the next point. Kinetic energy depends on frequency of incident radiation. We will check it. Kinetic energy, now this one is kinetic energy. Come to the Einstein equation. Kinetic energy, this is h nu minus h nu naught. So frequency for and energy relation is what? E is equal to h nu. So if frequency is greater, then the energy is greater. And if the energy, this one, the first term is greater, then because second term is fixed, हमने क्या किया है, क्योंकि ये वर्क फंक्शन होता है, यहाँ पे देखो ये फाई वर्क फंक्शन है. वर्क फंक्शन कोई एक मैटर शीट ले ली तो वर्क फंक्शन फिक्स हो जाता है. इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. तो फाई फिक्स है, फाई इज कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट. तो ऑब्वियसली LHS कब बढ़ेगा? LHS तब बढ़ेगा जब RHS का फर्स्ट टर्म इंक्रीज होगा. माइनस साइन लगा हुआ है, तो RHS का फर्स्ट टर्म जब इंक्रीज होगा तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी. और RHS का फर्स्ट टर्म यानी h न्यू तब इंक्रीज होगा जब न्यू इंक्रीज होगा. तो न्यू के इंक्रीज होने पर, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है. और यही आपका थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फ्रीक्वेंसी, if there is an increase in frequency, there is an increase in kinetic energy. Kinetic energy is directly proportional to frequency. Okay, so that is on the basis of Einstein equation and the second point of Einstein explanation. Okay, come to the next point, work function and threshold frequency. The statement was that there is a minimum value of incident radiation below which, minimum value of frequency of incident radiation below which there is no photoelectric effect phenomena, and that particular frequency is called threshold frequency. Okay, चेक करते हैं. यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट. अगर हम न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज इक्वल टू न्यू नॉट, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में अप्लाई करने पर. मीन्स कि न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट अगर हो जाए, यानी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, हम वो इंसिडेंट रेडिएशन फॉल डाउन करा रहे हैं जो कि मेटल, जो हमने मेटल शीट ली थी, कैथोड शीट ली थी लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में, उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल है. ठीक है, तो क्या होगा? उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल है. ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0 हो जाएगी, यानी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी जो मैक्सिमम स्पीड से एनोड की तरफ आ रहा था. ओके, गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, इसको जो मैं आ रहा था, ये सारा कुछ बोल रही हूँ, इसके लिए आपको वो एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था, वो सेटअप वाली फिगर सामने रखना. इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है. ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन कम स्पीड से आ रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से आ रहे हैं. तो इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी जिसकी, जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन की स्पीड मैक्सिमम है, उस मैक्सिमम स्पीड के इलेक्ट्रॉन के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन है. तो ऑब्वियसली इससे कम स्पीड वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो इक्वेशन है वो यही सेम वैलिडेट करेगी. ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को मेटल शीट जो ली गई थी, कैथोड शीट, उसकी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल रखते हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रही है. काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन मूव भी नहीं कर पा रहा है. अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब वो मेटल की सरफेस पर ही स्टॉप हो गया. मैंने आपको वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट यही बताया था. वर्क फंक्शन के कॉन्सेप्ट के लिए भी एक बार देख लेना पिछले वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट. यहाँ से फोटॉन से जो एनर्जी आती है
ई एनर्जी आ रही है, तो वो दो पार्ट में यूज़ होती है। वन पार्ट कि इलेक्ट्रॉन को अपनी पोजीशन से सरफेस तक आने में जो एनर्जी चाहिए होती है और उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, और दूसरा पार्ट होता है कि सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो है काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल जो एनर्जी रेडिएशन की होती है वो दो पार्ट में आ गई, दैट इज़ द वर्क फंक्शन जो इंटरनल पार्ट में यूज़ हुई और बाकी जो काइनेटिक एनर्जी बची। ठीक है, और ये इक्वेशन को देखो तो ये अपनी आइंस्टाइन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहती है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई है, तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई, और सेम यहाँ पर आता है। यानी आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है वो दो पार्ट में आती है, एक इंटरनल एनर्जी यानी वर्क फंक्शन के फॉर्म में, और दूसरा एक्सटर्नल एनर्जी दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में। सो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी फोटॉन से वो दो पार्ट में यूज़ करेगा। फर्स्ट वन इज़ द इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन, and the second one is the kinetic energy corresponding to the motion from the cathode to anode. Got my point? तो ये इस इक्वेशन इसी इक्वेशन से आ रही है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। दैट मीन्स ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखो तो अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी वर्क फंक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रही है मैक्सिमम। मीन्स कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस पे ही रुक जाएगा, यहाँ इंटरनल एनर्जी में ही कंज्यूम हो गई सारी एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए एनर्जी बची ही नहीं, एक्सटर्नल के लिए एनर्जी नहीं बची। एक्सटर्नल के लिए एनर्जी नहीं बची, दैट मीन्स कि फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे स्टॉप हो गया, सरफेस से बाहर आया ही नहीं। सो दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना नहीं होगा। तो इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसकी कॉरस्पॉन्डेंस में एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन की इतनी होनी चाहिए दैट इट इज़ सफिशिएंट टू प्रोवाइड द एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कैन यूज दैट एनर्जी इन द वर्क फंक्शन एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी फॉर्म। ओके, तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी ही देनी है रेडिएशन को, इंसिडेंट रेडिएशन को। अगर एग्जैक्टली वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी देगा तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना नहीं होगा। सिंपल सी थिंग। ओके, अब आपको अगर सपोज आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपको दिल्ली से आगरा जाना है, ओके, दिल्ली से आगरा जाने के लिए रेंट पड़ता है, रेलवे का टिकट पड़ेगा आपका, रिजर्वेशन कराने पर टिकट पड़ेगा आपका, सपोज दैट इज़ 500। ओके, 500 रुपीज़ का टिकट पड़ रहा है और आपको आपके पापा ने दे दिया कि बेटा जाओ 400 रुपीज़ है, 400 रुपीज़ में आप दिल्ली से आगरा चले जाओ। आर यू एबल टू गो अप टू द आगरा पॉइंट? नो। आपको वो जो अमाउंट दिया है 500 रुपीज़ का अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट, उससे ग्रेटर देना होगा। क्यों? आप आगरा जा कर के वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी तो एक्सपेंसेस होंगे। वहाँ पर ऐसा तो नहीं है रेलवे स्टेशन के बाद आप पैदल चलने लगोगे। ओके, वहाँ से आप आगे अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचोगे, तो 500 तो देने ही देने, इसके प्लस देने, मीन्स एक्स्ट्रा मनी फॉर द एक्सपेंडिचर इनसाइड द सिटी आगरा। सो दैट इज़ द थिंग कि ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है, ये पापा है, इन्होंने जो एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन को, वो आप इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देनी है कि वो अंदर से बाहर तो आए ही और बाहर भी अपनी एनर्जी यूज़ करे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट देना है सो दैट इट कैन यूटिलाइज दैट एनर्जी। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट देना है, उसके इक्वल नहीं देना। एग्जैक्टली 500 देने पर भी कुछ काम नहीं होना। आप रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाओगे, उसके आगे नहीं पहुंच पाओगे, उसके आगे आपको पैदल चलना पड़ेगा, एंड दैट इज़ हार्ड टू डू। गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की, इसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना नहीं होगा। क्लियर? नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, नो टाइम लैग। तो ये जो नो टाइम लैग का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको क्लासिकल एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, अभी मैं फिर से बता रही हूँ, जस्ट विद द एग्जाम्पल ऑफ केक एंड पेस्ट्रीज। ये पेस्ट्रीज हैं और ये केक है। ठीक है, अब क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग्स में जो एनर्जी फॉल डाउन करती है मेटल शीट पे एनर्जी फॉल डाउन की,
और यहाँ पर ये भी मेटल शीट है, यहाँ पर फोटॉन्स फॉल डाउन कर रहे हैं। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ने फोटॉन का कॉन्सेप्ट तो बताया नहीं था, आइंस्टाइन ने बताया था। आइंस्टाइन ने कहा कि जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी वो फोटॉन के फॉर्म में। तो क्लासिकल थ्योरी तो ये कहती है कि जो एनर्जी सोर्स था वहाँ से एग्जैक्टली एनर्जी ऐसे फॉल डाउन कर गई। तो क्या होगा कि ये केक के फॉर्म में मिली। अब इस यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है आसपास के, वो केक में से एनर्जी कट करेंगे, कुछ इधर से निकालेंगे एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से एनर्जी निकालेंगे, कुछ इधर से निकालेंगे, और अनइवन अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा इलेक्ट्रॉन्स को। ये इक्वल अमाउंट पे नहीं हो रहा है, अनइवन अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल शीट में, उनको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। जबकि लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग्स में हर एक इलेक्ट्रॉन को इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही थी। तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है जो फेल हुआ, ठीक है। उसके बाद टाइम लैग की बात आती है कि टाइम लैग इसमें नहीं होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना में, इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो अगर एनर्जी इंसिडेंट हुई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी पहले अपने अपने पोर्शन की कलेक्ट की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स मेटल शीट से बाहर आना शुरू करेंगे। तो इस प्रोसेस में टाइम लैग हुआ। क्यों? क्योंकि जो अपने अपने पोर्शन की एनर्जी लेंगे, केक की कटिंग होगी। ये केक है, केक को पहले पीस कट किए जाएंगे और उस एक एक पीस को निकाल करके इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने पीसेस ले लेंगे। तो इसमें टाइम लैग हुआ क्योंकि ये इस फिनोमेना में कटिंग का टाइम इन्वेस्ट हुआ। ओके, केक की कटिंग का मीन्स एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम यहाँ पर कंज्यूम हुआ। इस प्रोसेस में देख लेते हैं जो आइंस्टाइन थ्योरी थी। आइंस्टाइन ने कहा था कि जो रेडिएशन फॉल डाउन करते हैं वो फोटॉन के फॉर्म में फॉल डाउन करते हैं, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में करते हैं। तो पैकेट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर, ये एक एनर्जी पैकेट दिया गया तो वो एक इलेक्ट्रॉन को मिल गया। दूसरा एनर्जी पैकेट, यानी ये जो पेस्ट्री है, पेस्ट्री ऑलरेडी कट है और इक्वल साइज में कट है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी पैकेट्स फॉर्म में मिल रही है, तो एनर्जी कलेक्ट नहीं करनी है, कलेक्शन का टाइम यहाँ पर नहीं लगा। तो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन से डायरेक्टली एनर्जी लेंगे पैकेट्स के फॉर्म में और एग्जैक्टली बाहर आ जाएंगे। तो कटिंग का टाइम सेव होगा, मीन्स कि यहाँ पर टाइम लैग नहीं लगा जब फोटॉन का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट वन फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिफ्थ लॉ, मीन्स देर इज़ नो टाइम लैग। कटिंग नहीं होती, कटिंग का टाइम इन्वेस्ट नहीं होता, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम नहीं लगता, बिकॉज द रेडिएशन ऑलरेडी कम्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो पैकेट्स मिल जा रहे हैं हर एक इलेक्ट्रॉन को और सेम अमाउंट के, सेम एनर्जी के पैकेट्स मिल रहे हैं। तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेगा पैकेट्स को और बाहर आ जाएगा। एनर्जी कभी भी रुकी फॉर्म में नहीं होती, तो इसीलिए वो पैकेट्स लेकर के तुरंत बाहर आएगा मेटल शीट से। तो दैट इज़ वाई देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। माई पॉइंट इज़ क्लियर? तो ये हैं एक्सप्लेनेशन। मज़ा आया इसमें? क्योंकि ये अच्छे हैं, ये जो एक्सप्लेनेशन दिए गए ये एक न्यू कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट है फोटॉन थ्योरी। और फोटॉन थ्योरी मॉडर्न फिजिक्स का बेस है। ये जो फोटॉन है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बोसॉन्स, दैट आर कॉल्ड बोसॉन्स। ठीक है, बोज आइंस्टाइन पार्टिकल्स इन्हें कहते हैं, विच में ऑल्सो भी सेट टू एज गॉड पार्टिकल। ठीक है, वैसे तो गॉड पार्टिकल के और भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बट इनको क्योंकि ये एनर्जी पैकेट्स हैं तो इनको गॉड पार्टिकल कहा जाता है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट एंड दैट वाज करेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन, फॉर विच ही गॉट नोबेल प्राइज एट दैट टाइम व्हेन ही हैज़ गिवन द थ्योरी, एंड दैट थ्योरी वाज अप्रूव्ड बाय दिस कॉम्पटन इफेक्ट एज वेल एज प्लैंक थ्योरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया था मॉडर्न फिजिक्स का। ये खाली इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, बल्कि इसके आगे जो बाकी मॉडर्न थ्योरी थी उसके लिए भी एक बेस था जो फोटॉन का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, सो दैट इज ओवरऑल आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू न्यूमेरिकल पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल। This one is the numerical statement. Work function of a metal is 4.2 electron volt. Will the metal give photoelectric effect phenomena for incident radiation 330 nm? Photoelectric effect nm मैंने PEE से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन है आपका। वर्क फंक्शन सॉल्यूशन में क्या है? वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू क्या है? 4.2 EV। एंड रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर वर्क फंक्शन E इज इक्वल टू h न्यू नॉट। दैट इज द वेवलेंथ। हियर नैनोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, नैनोमीटर मीन्स क्या है? आप देखो यूनिट से फाइंड आउट करते हो कई बार। नैनोमीटर इज़ द यूनिट, मीटर है
मीटर लेंथ के कोरस्पॉन्डेंस में यूनिट है, दैट मीन्स ये वेवलेंथ दी हुई है। तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 330 नैनोमीटर। अब इसके बेसिस पर आप सबसे पहले तो आइंस्टाइन इक्वेशन अप्लाई करोगे। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहती है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू एच न्यू, यानी इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी माइनस ऑफ फाई, ये होता है। ठीक है, तो एच न्यू सबसे पहले आपको निकालना है। आपको पता चल जाएगा कि अगर एच न्यू फाई से ग्रेटर है तब तो काइनेटिक एनर्जी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मेनली इस क्वेश्चन में आपको एच न्यू की वैल्यू निकालनी है। इफ़ एच न्यू इज ग्रेटर देन फाई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था लॉज में। इफ़ एच न्यू इज लेस देन फाई और इक्वल टू फाई तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना, यही है। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपली हमें इस वैल्यू से एच न्यू की वैल्यू निकालनी है। तो एच न्यू मीन्स हो जाएगा दैट इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट शुड बी इक्वल टू एच सी बाई lambda. Now H value is 6.6 10 to the power minus 34. C is 3 into 10 to the power 8 divided by lambda is 330 नैनोमीटर। तो नैनो का मतलब मीटर में कन्वर्ट करो, -9। ओके, इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू पता चलेगी कि ये ग्रेटर आ रही है कि नहीं आ रही है। सो ठीक है, ये आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये किस में आ रही है वैल्यू? जूल में। तो यू गॉट दिस आंसर। नाउ यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू बिकॉज इट इज़ गिवन इन जूल, और वर्क फंक्शन किस में दिया है? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। अब रिलेशन क्या होता है? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 ईवी। क्लियर? 1.6 क्यों लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। इस तरीके से आप इसे मेमोराइज करोगे और ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आपको 6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल की वैल्यू निकालनी है। सो इट विल बी माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वी सॉल्व दिस वैल्यू। ओके, सो दैट एच न्यू वैल्यू आपकी इतनी आ रही है। अब चेक करो, एच न्यू इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी आ गई और ये है वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन इज ग्रेटर, ईवी में ही है दोनों, अब कंपेयर कर सकते हो। वर्क फंक्शन इज ग्रेटर देन द इंसिडेंट रेडिएशन। वर्क फंक्शन अगर ग्रेटर है या इक्वल है एच न्यू से, सो दैट मीन्स व्हाट? नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना। सो दैट शुड बी द आंसर। क्वेश्चन यही था, आपसे पूछा जा रहा था विल the metal give PEE for the incident radiation? So metal will not provide PEE for this incoming radiation because it has lesser energy than the work function. It should be greater than the work function value. और यही आपको मैंने लॉ में बताया था। तो हमेशा क्या है, आपको ये 2 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखने हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ओके, ना ये जो मेथड था आप देखो तो ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है। नाउ आई एम प्रोवाइडिंग यू द शॉर्ट ट्रिक to solve these kind of numerical. Okay. शॉर्ट ट्रिक, अगर आपकी एनर्जी किसी भी क्वेश्चन में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो उसके लिए वेवलेंथ हमेशा एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए। एंगस्ट्रॉम का मीनिंग होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के फॉर्म में। ओके, अगर आपके पास ये 2 हैं तो आपका रिलेशन यहाँ पर एनर्जी और वेवलेंथ में आ जाता है। सिंपल सा मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल नंबर है जिसको आपको लर्न रखना है, 12375। दैट वेवलेंथ शुड बी एंगस्ट्रॉम एंड द एनर्जी शुड बी इन
EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहीं भी एनर्जी अगर दी है तो आप उसमें वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, और अगर वेवलेंथ दी हुई है तो आप उसके कोरस्पॉन्डेंस में एनर्जी निकाल लोगे। तो दिस ट्रिक इज़ वेरी यूजफुल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स विद इन सेकेंड्स। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी हियर द वेवलेंथ हियर इट इज़ गिवन एज 330 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को अगर आपको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये लिमिटेशंस भी याद रखनी साथ में कि वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए और एनर्जी आपकी ईवी में आएगी, जूल में नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। सो आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल एनर्जी डायरेक्टली एच न्यू एनर्जी जो निकालनी थी हमें यहाँ पर, दिस वन, इसको आप क्या करोगे 1 2 3 7 5, 1 2 3 4 5 होता है, 7 5 कर दो 4 की जगह पे, 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई एनर्जी दैट इज वेवलेंथ 3300। तो नंबर से डिवाइड करना है, 00 को हटा दो, 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई 33 10 टू द पावर -2, ये 00 मैंने पावर में ले लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। थ्री 3.75 एग्जैक्ट वैल्यू, यू गॉट द एग्जैक्ट वैल्यू विद इन सेकेंड। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज ये एक्सप्लेन करने का भी टाइम अगर हटा दो तो ये विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पर आप देखो एच की वैल्यू रखी, सी की वैल्यू रखी, वेवलेंथ रखी, उसके बाद आपका आंसर जूल में आ रहा है, जूल के बाद आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया। तो ये एक लेंथी प्रोसेस हो गया, और इस प्रोसेस में आपको ईजी क्या है कि आप सबसे पहले तो मॉडर्न फिजिक्स में जनरली जितने भी क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल होंगे उसमें एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दी होगी। बहुत रेयर क्वेश्चन होंगे जिसमें जूल में दी हुई है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर में भी आपको मैक्सिमम मीन्स सारे क्वेश्चन में, सारे न्यूमेरिकल में आपको एनर्जी ईवी में दी है या वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी हुई है या नैनोमीटर में दी हुई है। तो वो क्वेश्चन एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इवन, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, एटम एंड न्यूक्लियाई एंड दिस चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इन तीनों चैप्टर में आपको यही फॉर्मूला यूज़ करके आप एनर्जी और वेवलेंथ वाले क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो आई होप दिस ट्रिक इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू एंड यू विल अप्लाई इट। जस्ट डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर दिस ट्रिक एंड यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल ईजिली। ओके, तो आज मैंने आपको सिर्फ ये एक न्यूमेरिकल बताया क्योंकि नाउ टाइम इज़ सो मच हेयर फॉर दिस लेक्चर। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताने वाली हूँ, दैट द वेव नेचर ऑफ मैटर, दैट मीन्स द पार्टिकल नेचर इट इज़ नोन टू एवरीवन, बट द वेव नेचर आई विल डिस्क्राइब। सो बी focused and practice over the topic. Thank you for today.